السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 55 سے آج شروع کریں گے۔ تم اپنے رب کو آوازاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو اور اللہ کو خوف سے ڈر سے پکارتے رہو، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والے ہوائیں چلاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پر تم نے کہاں نصیحت حاصل کرنا، اللہ معاف کرے۔ اور جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار ناقص ہی نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بہت برے دن کا عذاب آنے سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم میں سے بعض سرداروں نے کہا، بے شک ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آ گئی جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے تھے کشتی میں بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم میں سے کافر چودھری کہنے لگے، بے شک ہم تجھے بے وقوفی میں پڑے دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جان نشین بنایا اور تمہیں قد و قامت میں بڑھوتری دی، لہٰذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟
चनाचा अगर तू सच्चों में से है तो हम पर वो अजाब ले आ जिससे तू हमें डराता है। ऊद ने कहा, तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर अजाब और गज़ब नाजिल हुआ ही चाहता है कि तुम मुझसे इन नामों के बारे में झुठलाते हो जो तुमने और तुम्हारे आबाही व जद्दाने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई, चनाचा तुम इंतज़ार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ। फिर हमने ऊद को और इन लोगों को जो इनके हमराह थे अपनी रहमत के साथ निजात दी, और हमने इन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और वो ईमान लाने वाले ना थे। और हमने कौम समूद की तरफ इसके भाई सालिया को भेजा। सालिया ने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं। तहकीक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील है। ये अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए ख़ास निशानी है। चनाचा तुम इसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरे, और इसे बुराई के साथ हाथ भी ना लगाना, और वरना तुम्हें बहुत दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। और याद करो जब इसने तुम्ही कौम आद के बाद एक दूसरे का जानशीं बनाया और तुम्हें ज़मीन में ठिकाना दिया। तुम इनकी नरम मट्टी से महलात बनाते हो और पहाड़ से घर को तराशते हो। चनाचा तुम अल्लाह की नेमतें याद करो और ज़मीन में फसादी बनकर मत फिरो। इसकी कौम के वडेरे जिन्होंने तकब्बर किया कमज़ोर समझे जाने वाले ईमानदारों से कहने लगे, क्या तुम ये बात जानते हो कि वाकई सालिया अपने रब की तरफ से भेजा हुआ है? उन्होंने कहा, हाँ, बिलाशुबा हम इस चीज़ पर ईमान लाने वाले हैं जिसके साथ उसे भेजा गया है। इन लोगों ने कहा जिन्होंने तकब्बर किया, बेशक हम इन चीज़ों का इनकार करने वाले हैं जिस पर तुम ईमान लाए हो। चनाचा उन्होंने ऊँटनी की टांगें काट डालीं और उन्होंने अपने रब के हुक्म से कश्ती की और कहा, ऐ सालिया, अगर तू रसूलों में से है तो हम पर वो अजाब ले आ जिससे तू हमें डराता रहता है। फिर उन्हें ज़लज़ले ने आ लिया, चनाचा वो अपने घरों में घुटनों के बल मुँह मुर्दा गिरे पड़े थे। तब सालिया ने इनसे मुंह फेर लिया और कहा, ऐ मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम भेज दिया था और मैंने तुम्हें नसीहत की थी, लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। और लूत को भेजा जब इसने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने भी नहीं की। बेशक तुम जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरत को छोड़कर मर्दों के पास आते हो, बल्कि तुम लोग हद से बढ़ जाने वाले हो। अस्तगफर। और इसकी कौम का जवाब बस यही था कि उन्होंने कहा, इन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, बेशक ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। फिर हमने उसे और इसके घर वालों को निजात दी, सिवाय इसकी बीवी के। वो पीछे रहने वाले हलाक होने वालों में शामिल हो गई। और हमने इन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। चनाचा देखो लहजे मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ। और हमने अहले मदीन की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा। इसने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ गई है, लिहाजा तुम नाप तोल को पूरा करो और लोगों को इनकी चीज़ें कम करके मत दो, और तुम ज़मीन की इस्लाह के बाद इसमें फसाद ना करो, और ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। और अगर तुम हर एक रास्ते पर मत बैठो
तुम इस शख्स को डराते और अल्लाह के रास्ते से रोकते हो जो इस पर ईमान ले आए हैं, और तुम इस राह में ढेर तलाश करते हो। और याद करो जब तुम थोड़े थे, फिर इसने तुम्हें ज़्यादा कर दिया, और देखो फसादियों का अंजाम कैसा हुआ था। और अगर तुम में से कुछ लोग इस हुक्म पर ईमान ले आए हैं जो मुझे देकर भेजा गया है, और कुछ दूसरे ईमान नहीं लाए हैं, तो तुम ज़रा सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला कर देगा, और वो सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर फ़ैसला एक दिन करेगा। आप नेक बने। ये जो तर्जमा है इस पे आप अगर गौर करेंगे तो जीने की पूरी बातें लिखी हुई हैं कि हमारा कौन सा तरीका होना चाहिए जीने का। और जो तफसीर भाई कहते हैं कि आप तफसीर के साथ पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। तफसीर तो है, मगर तफसीर पढ़ने से अच्छा है कि आप आज की ज़िंदगी देखेंगे। तो तफसीर तो इनकी कहानी है ना, जो मतलब है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा उन पे जो गुजरी थी वो बातें हैं। तो हमारी ज़िंदगी की जीने का तरीका तो ये है ना, हमें मना फरमाया गया है कि झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, तोल में नाप में कमी नहीं करनी, किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं करनी। अपने आप को संवारो, क्योंकि अब तो हम जी रहे हैं ना, तो हम अपने आप को संवारें। तो पीछे आप देखना चाहते हो, पीछे खोल के देखते हो, तो गौर करना है तो इसी पे ही कर लो। करना तो गौर ही है ना कि हमने जीना कैसे है। तो हमारे पूरे जीने का तरीका इस कुरान पाक में है तर्जमे में, और तर्जमा गौर से सुनो और इसमें आप ढूंढो अपने जीने का तरीका कि हम ऐसे ही जी रहे हैं या फिर किसी के साथ ज़्यादती के साथ। तो कोशिश करने से कामयाबी है, और कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।